So just a second. Okay. Now the hope my screen is visible to everyone. This is a very interesting mathematics is there as compared to the previous year or previous semesters. Like if I'm going to explain about the evaluation as well as the credit system of this part. Okay. What are the evaluation and what are the grading system? I'm just going to explain. Just see to it that clearly, and if any hesitation or any doubt, without any hesitation and doubts, you should understood this part. Just a second. So as engineering mathematics 3 is for 80 marks, 80 marks. This year, no syllabus reduction will be there. As in a last year already, you people aware about that, that because of a pandemic and disaster act, the syllabus was reduced. But in this academic year, the University of Mumbai is not going to reduce any kind of a syllabus. The thing is what there are two parts. One is the topic which I will taught you, and the second part is known as a self study. So whatever be the self study part, that part is not going to ask in your examination like as a internal assessment test as well as a in end semester examination. So be careful about that. But here little bit of different things, if you aware, that is in your engineering mathematics 1 and engineering mathematics 2, there is a tutorial only, or we can say that is a we taken as a class test. If you remember, class test hota tha, 8 baje schedule hota tha, class test liya jata tha and all. But here little bit of different things. There is a tutorial by default, but there is a one thing is known as a mini project, and that mini project is very important because if you are going to see our syllabus copy or syllabus of engineering mathematics 3 in your book or in your syllabus, then you can see that there is a mini project part, and that mini project is a very important for technical point of view, because you are learning engineering mathematics 3 or mathematics which are going to use in your upcoming semester like semester 6, 5, 6, 7, 8, or for future semesters, we can say that. So that what I'm going to explain is the mini project is going to be designed in a such a way that whatever the topic you are going to learn here, what are the applications which we you have to use in upcoming semester, or what are the application of that respective topics. So the evaluation system of this part is, again I'm just saying, that is that is a 125 marks of your engineering mathematics 3. Hope my screen is visible and voice is also audible. And I'm going to say that
अगर between में or in between, if my voice is lagging, if my screen is lagging or not audible or not visible respectively, then I request to all the students, from anyone from your side, you can on your mic and you can just say that is your voice is not audible or screen is not visible. Chat में आप लिखोगे, that part is not going to visible for me because I shared the screen. So while sharing the screen, I'm not able to see what you are written in a chat box or in a chat. So I request all the students, कोई भी एक initiative लेके अपना माइक ऑन करके मुझे बताना है कि मेरा वॉइस ऑडिबल है या नहीं है और स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, प्लीज। ये अभी फर्स्ट लेक्चर में बताया हूँ, हर लेक्चर में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 is having 125 marks. That 125 marks is divided as a 80 marks as a end semester examination or ESE. Similarly, next 20 marks is designed for IAT, internal assessment test, and last one is designed for, that is a tutorial plus mini project plus attendance plus attendance. So tutorial plus mini project plus attendance, these are the three parts. You can see that, just a minute. हाँ बोलो मैम। मैं लेक्चर में हूँ, अभी कॉलेज में नहीं हूँ, घर पे हूँ। मैं थोड़े टाइम में करूँ क्या कॉल? मेरा एक 11:45 को लेक्चर खत्म हो रहा है, फिर कॉल करता हूँ। ठीक है ठीक है। Okay, so tutorial plus mini project plus attendance. That your attendance is for 5 marks, your mini project is for 10 marks, and tutorial is again for 10 marks. So please just see to it that in previous engineering mathematics 1 as well as engineering mathematics 2, there was only a tutorial. So this is for 10 marks, this is for mini project for 10 marks. There will be a 6 tutorial will be there. There will be a 1 mini project. Attendance तो आपको पता ही है, that is carries a 5 marks less, just like a previous semesters. So one mini project, that mini project will be having according to the students. If we have a 60 intake in our branch, 60 intake hai, so we will take, or we can say that 4 students in each group, 4 students in each group, and worst to worst, we can take 5 students in each group. So we can make a 12 group, or we can make a 15 group, or maximum we are taking as a 15. हम लोग 15 ग्रुप में इसको डिवाइड करेंगे, 15 group, and each group will carry a 4 students. So please take a note that this part, 4 students in each group. One more thing, now I'm just telling, that is how many of you have in this, we can say that is still now, I think we have a 34 students, I think 34 or 33 students in our class. So till now we can make according to that. Later, while when the diploma students or direct second year students will enter, तो उनका एक सेपरेट ग्रुप होगा, वो ग्रुप आपके साथ मर्ज नहीं होगा, बिकॉज लास्ट ईयर देयर सेमेस्टर वाज डिफरेंट। जब वो सेमेस्टर, आप सेमेस्टर मतलब रेगुलर स्टूडेंट जब सेमेस्टर 4 पढ़ रहे थे, दैट टाइम दे लर्न सेमेस्टर 3 एज वेल एज सेमेस्टर 4. So according to that concept, I will make a group, and I am just giving you the freedom
मैं इतना फ्रीडम आपको दे सकता हूँ कि जो आप 32 33 हो, आप लोग अपने हिसाब से 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप क्रिएट कर लो। एंड बाय कमिंग सैटरडे, today is at Wednesday, tomorrow Thursday, Friday, Saturday. We have 3 more days. If I consider today, then we have 4 days. That is Wednesday, Thursday, Friday, and sorry, 3 days. 3 दिन है, अगर हम आज को कंसिडर करेंगे देन वी हैव 3 days। ये 3 दिन में आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर से साथ में हो, कॉलेज नहीं आए हो आप लोग सब साथ, बट होप यू अवेयर। अगर सैटरडे तक आप लोग खुद से अपना ग्रुप नहीं मुझे बताते हो, दैट इज you 3 4 students have a group, then I will create from myself, मैं अपनी तरफ से ग्रुप क्रिएट करके फॉर्म करके आप लोग को दूंगा। सो इट्स योर चॉइस, मैंने एक फ्रीडम दिया है आपको। सैटरडे वी हैव अ लेक्चर ऑन ट्यूटोरियल, सैटरडे नहीं, नॉट, वी हैव अ लेक्चर्स ऑन फ्राइडे ट्यूटोरियल। वहां पर मैं पूछूंगा अगर आपके ग्रुप क्रिएट हुए हैं तो ठीक, नहीं क्रिएट हुए हैं तो सैटरडे को मैं बाय डिफॉल्ट एक्सेल शीट क्लासरूम में शेयर कर दूंगा कि आपके ये ग्रुप हैं, और वो ग्रुप आपको फिर कंसीडर करके पूरा सेमेस्टर उस पे काम करना है ना। व्हाट वर्क वी हैव टू डू इन प्रीवियस। तो जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है, बहुत सारे रिसर्च वर्क और प्रोजेक्ट आते रहते हैं अब थ्रू आउट दिस सेमेस्टर। तो बहुत जगह पार्टिसिपेट भी करना है, और साथ साथ में मिनी प्रोजेक्ट जो है उसके लिए थोड़ा वर्कआउट करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल पर्पस पे जाना है। ऐसा नहीं है कि बस पीपीटी बना के प्रेजेंट कर दिया हो गया प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है। यू शुड गेट सम नॉलेज रिगार्डिंग योर सेल्फ स्टडी पार्ट, और वी कैन से दैट वॉट एवर, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पार्ट के ऊपर भी अगर अच्छा प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो देन यू कैन गो अहेड विद दैट। ऐसा नहीं है कि जो सेल्फ स्टडी का पार्ट है ओनली दैट पार्ट यू हैव टू कंसीडर, no way। If I'm teaching the Laplace transform, our first module is the Laplace transform, अगर मैं Laplace transform आपको पढ़ा रहा हूँ, if I'm going to teach the Laplace transform, then the Laplace transform पे ही अगर किसी को इंटरेस्ट है, Laplace transform में अगर किसी को इंटरेस्ट है कन्वोल्यूशन थ्योरम में, और उसका अगर एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, एंड if you aware and if you search or if you research few projects regarding convolution theorem, then you can go ahead with that part। मैक्सिमम वी कोशिश करेंगे हम इस चीज का, दैट इज वी हैव टू क्रिएट अ मिनी प्रोजेक्ट ऑन सेल्फ स्टडी पार्ट, सो दैट जो टॉपिक है वो टॉपिक तो मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, बट सेल्फ स्टडी वाला पार्ट अगर प्रोजेक्ट में यूटिलाइज होगा देन दैट पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड। सो दैट्स वाई वी कंसिडर्ड एज अ मिनी प्रोजेक्ट को हमने, और यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी ने सेल्फ स्टडी वाले पार्ट को दिया गया है। नाउ ट्यूटोरियल इज प्योरली बेस्ड ऑन topics which I am going to teach. So please take a note of this part। ट्यूटोरियल वही टॉपिक होंगे जो मैं पढ़ाता हूँ, वो सेल्फ स्टडी पे नहीं होगा, अदरवाइज उसको भी सेल्फ स्टडी में लोगे। तो ट्यूटोरियल आपके 10 मार्क्स के हैं, मिनी प्रोजेक्ट 10 मार्क्स के हैं, अटेंडेंस पाए ये 25 हो जाता है, तीनों कंबाइन होके दिस पार्ट इज 25 मार्क्स। सो 80 प्लस 20 प्लस 125 मार्क्स पूरा आपका सिलेबस है। मिनी प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, प्लीज मेक अ क्लियर दिस थिंग्स। मिनी प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। वाइल प्रेजेंटिंग, अगर ऑफलाइन अलाउड हुआ यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट ने अलाउ किया देन ऑफलाइन, if online is there then online we you have to give, just like YY and all the things, that time you should present your screen। So hope I clear about these things, that is engineering mathematics 3 evaluation process। 80 marks end semester, 20 marks IIT। IIT आपके दो होते हैं, IIT 1 and second one is IIT 2। so this 2 IIT average will consider as a 20। उस 20 में से जो मार्क्स मिलता है वो ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ फेस किया है, ये भी चीज़ फेस किया है, ट्यूटोरियल भी फेस किया है, जो टर्म वर्क होता है। एंड दिस 25 मार्क्स इज कॉल्ड एज अ TW और टर्म वर्क आपका यहाँ पे होगा। तो प्रीवियस जो भी सेमेस्टर आपके गुजरे हैं उसमें नहीं। एंड वन मोर थिंग, दैट इज इन प्रीवियस सेमेस्टर द 75% अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया था वो मैंडेटरी उतना नहीं था।
आपके पेरेंट्स को आपको कॉल किया गया, आपका अटेंडेंस दिखाया गया एंड ऑल द थिंग्स, बट हियर in this academic year 21 to 22, this criteria is mandatory. Please take a note, serious note of this part. 75% attendance is are mandatory for this academic year 2021 to 2022. 2021-22 के लिए 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है. सो प्लीज टेक अ सीरियस नोट ऑफ दिस. So without taking so much time, if evaluation process or evaluation scheme में किसी को कोई query है, then you can ask. If not, I'm proceeding with our the first module. मैं first module start करूँगा. हेलो। हेलो सर। Yes, yes. साइलैब नहीं होगा इस सेमेस्टर में? नहीं, साइलैब नहीं होगा. ओके ओके। और किसी को कुछ डाउट है? We are trying to create one add-on courses for the IT and com students like AIML, data engineering के जो students हैं उनको भी. तो अगर वो एड ऑन कोर्सेस यूनिवर्सिटी पास करता है, देन डेफिनेटली वी कैन वर्क आउट. वी आर ट्राइंग टू मेक वन एड ऑन कोर्सेस. So I'm coming to this part, our syllabus part. So hope these things are clear to everyone. The evaluation scheme. So Saturday that I request all the students please make a group without failing. अगर नहीं बनता है then I will by default Saturday मैं create कर दूंगा. So I'm coming to the first module of our syllabus, that is known as a Laplace transformation. Laplace transformation. Before I am going to explain one thing, I want to ask a question from student side. You can just let me know, or I will call a name students, so they can give the suggestion or the answer from your side, please. ऐसा नहीं कहना मुझे नहीं पता. We can start as from, or we I'm asking from the Rohit Pal. Please switch on your mic. I'm just asking one question. Rohit Pal. Rohit Pal, I'm audible. Rohit Pal.
Rohit Pal, at least you should write in a chat box. If you are not audible, then how can I justify or how I can say that is you are in a class? Please take a note, my dear students. You are attending a lectures. It is not like any webinar or any workshop is going on. You are just switch on, or you are just on your, or you just join a link, whether it is going on or whether it is stopped. You are not aware. Please, I request, don't do that. Anyway, I'm calling the next students. Vaibhav Parik, please switch on your. And I request all the students, you should carry a earphone. आप ये नहीं कहना मेरा earphone नहीं है, मेरे पास earphone नहीं है. आज के ज़माने में हर एक के पास earphone होता है. कोई ऐसा नहीं कह सकता है मेरे पास earphone नहीं है. Yes, sir. हाँ, वैभव पारिक. My question is, I'm teaching engineering mathematics 3 to IT Yes. department. Yes, sir. अगर मेरा पढ़ाई हुई चीज आपको समझ में नहीं आता है, Yes, sir. and if who is your friend in this class or engineering means IT department में आपका friend कौन है? So friend तो सभी है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं, सर. मतलब किसी एक का नाम ले लो. ऐसा सब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी से जमती नहीं आपकी. I'm just asking that is किसी एक का नाम ले लो. Okay, sir. सूरज. हाँ, सूरज. You are not understanding my subject. मैं किसी और सब्जेक्ट का एग्जांपल नहीं दूं, उससे बेहतर है मैं मेरे ही सब्जेक्ट का एग्जांपल दूं. आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में एक मॉड्यूल पढ़ा दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई टॉट, बट यू नॉट अंडरस्टूड अप टू मार्क और फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस. देन व्हाट विल बी योर डिस्कशन? आपका डिस्कशन कैसा होगा आपके दोस्त के बीच में? कन्वर्सेशन कैसा होगा? वही सर कि तुझे समझा है क्या, या मतलब ऐसा ही कुछ सर, कि मुझे नहीं समझा सर ने क्या सिखाया वो. अच्छा, बट आपको अगर बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, मैं सेकंड मॉड्यूल भी स्टार्ट कर दिया, देन हाँ. फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, देन व्हाट यू विल डू? आप क्या करोगे? So I'll try to understand by myself. नहीं हो रहा है. सर तो मैं कुछ YouTube का वीडियोस नहीं, वगैरह वो भी कुछ, वो या नहीं, उसके बाद भी नहीं या हो रहा सर है. उसके बाद भी नहीं हो रहा बेसिक से स्टार्ट करूँ, जो उसका सबसे पहले का जो है, मतलब अच्छा. एकदम बेसिक, उससे स्टार्ट है. करूँ. Can you approach to your I'm just asking because in first year there was a feedback session, if you remember. यस सर. फीडबैक सेशन शिवम सर भेजते थे आप लोगों को. यस सर. या तो दैट फीडबैक सेशन यू रिटर्न समथिंग के ये नहीं समझ में आ रहा है सर, बहुत घाई में है सर, बहुत फास्ट रहते हैं एंड ऑल ऐसा बहुत सारी चीजें रहती हैं. मतलब कैन यू अप्रोच टू योर HOD रिगार्डिंग दिस कि सर का पढ़ाया हुआ बहुत फास्ट जा रहा है, या सर पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है? यस सर. यस, ओके, दैट्स गुड. जब आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर रहे थे कि Yes, सर का समझ में नहीं आ रहा है, या क्लास में किसी से भी सबसे आप डिस्कशन कर रहे हो, या क्लास में किसी को नहीं समझ में आ रहा है, आई एम टेलिंग टू ऑल द क्लास, दैट इज whole class, 33 students, 34 students class are not going to understood what's going on in a class. पूरा क्लास को नहीं समझ में आया, तो पूरा क्लास डिस्कशन होगा from general point of view, because I was also student when I was studying in my college time. The general discussion was like कि अरे क्या पढ़ाते हैं सर को ही मालूम है, या क्या चल रहा है and all the things. But when you approach to head of the department or when you approaching to the principal, तो क्या आप जिस तरह से, जिस वे से, जिस एटीट्यूड से आप क्लास में अपने दोस्तों से या पूरे क्लास में जिस तरह का डिस्कशन चल रहा था, the conversation will be the same way or little bit different? different sir. Why different?
सर क्योंकि मतलब वो ऑब्वियसली सर प्रिंसिपल है तो दोस्त की तरह तो बात कर नहीं सकते मतलब Well, yes, इतना। yes, yes. So at least you can see that transformation, right? यस सर। At least you can see that is a transformation, right? मतलब जब आप अपने दोस्त या फ्रेंड या किसी से भी पूरे क्लास में डिस्कशन कर रहे थे तो आपका डिस्कशन थोड़ा डिफरेंट था, and while यस सर। talking with the head of department or the principal or any higher authority of an institute, your transformation is little bit there. मतलब आप एक proper channel से जाओगे, like writing a application to the principal or talking with the principal, sir, dear sir or respected sir, ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैथ्स का लेक्चर या जो भी सब्जेक्ट है वो लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, एंड ऑल द थिंग्स प्रॉपर वे से। उसमें ऐसा नहीं बोलोगे सर क्या कर रहे हैं यार, सर ये पढ़ाते हैं वो पढ़ा कुछ ब्ला 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 जो भी आप करते रहोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। सो देर इज अ लिटिल बिट अ ट्रांसफॉर्मेशन between you, right? यस यस So सर। thank you. Now you can off your mic. Now what I'm trying to explain from this example, मैं explain करना चाहता था, और I want to explain about that is a transformation. So first we should understand what is a transformation. So whenever we have to change any domain, like there was a student domain, if you can see that there was a student domain, while talking with the conversation regarding the mathematics lecture was not up to mark or what was not understandable, that time the transformation is different. Why? Because there was a student domain, or I can say that is represent as a student domain, or we can say that that was a student domain. So student domain था पहले, then transformation is little bit different. And while talking with the higher authority of the institute, whether it is a HOD or principal or a class teacher, whatever it may be, there is again a transformation. फिर वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आपने चेंज किया, समथिंग देर इज अ प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल वे से किस तरह कन्वर्जेशन करना है, किस तरह टॉक करना है, या अकेले बात करना है, या होल क्लास हैव टू विजिट टू द प्रिंसिपल ऑफिस और HOD ऑफिस and complaining about the engineering mathematics 3. So there is a little bit of transformation. So remember my dear students, in technical world, like, or I'm just giving more example because see, I will teach the Laplace transformation problem by default, but at the end what exactly you will learn or what will be the outcome of this module, at least you should understand. And I'm assure about these things, that is, while when you are going to enter in higher semester of engineering, and that time you will understood properly, because in end semester, or we can say that is seventh semester, there is a subject called as image processing and video processing is there, as well as one subject is there called as a discrete time signal processing, उसको एक कहते हैं DTSP, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग, और एक रहता है IPVP, इमेज प्रोसेसिंग एंड वीडियो प्रोसेसिंग. So basically these two things are the transformation things. वहां पे आप लाप्लास के एप्लीकेशन यूटिलाइज करते हो, यूज करते हो एक वे से, जो आप पढ़ते हो यहाँ पे वो चीज आगे जाके आप यूटिलाइज करते हो. सिमिलरली जो आप फूरियर सीरीज पढ़ोगे वो भी चीज आप आगे जाके यूटिलाइज करोगे. बट एग्जैक्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसा है, आई एम जस्ट गिविंग वन मोर एग्जांपल that is exactly about the transformation. My first one is, I'm asking again a question from a student side. Tanika Bhuira, I'm asking to you, did you ever travel in a local train or in any train of our country? ट्रेन में ट्रैवल किए हो कभी? हाँ सर. ओके. कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द सिग्नल प्रोसेसिंग, और सिग्नल का जो प्रोसेस होता है, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट थिंग्स जो आप समझे हो, जो ट्रेन जब आप ट्रैवल करते हो तो सम टाइम इट इज showing the red signal, sometime it is a orange, and sometime it is a green. Can you justify about that part?
सर रेड सिग्नल तो स्टॉप पे होता है ना? हाँ, स्टॉप एंड बिजी एंड क्लियर, राइट, respectively. Yes, मतलब sir. red is known as a stop, means you have to stop, and orange is little bit, we can say that is a busy. It's not clear, not stop, but it's little bit a busy. Or the green is, we can say that is a clear. Similarly, I'm coming to one more example, that is a traffic signal, means our road signal. जो हमारे मुंबई सिटी में या भी जो भी सिटीज में सिग्नल यूटिलाइज किए जाते हैं, वहां पे भी सेम होता है, बट ये रोड सिग्नल होता है. So that part is again green, red, and orange is also there. But there is a difference between a train signal and we can say that is our road signal. Can you differentiate between two signals? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि वो दोनों में डिफरेंस क्या है? Yes or no? Yes or no? I'm asking. No, sir. No. Okay. Is there anyone in a class who ever observed a traffic signal, means our road signal, and the train signals? Those are based on a track. आपने देखा होगा, आप कभी गेट के साइड खड़े रहोगे तो आप देखते रहोगे पोल्स लगे रहते हैं सिग्नल्स के एंड ऑल रिस्पेक्टिव डिस्टेंस पे. Is there anyone in a class who ever observed regarding this? नो सर. नो, पूरे क्लास में किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया. एक और एग्जांपल देता हूं आपको. टेक ऑफ, मतलब जो अपना एरोप्लेन है या फ्लाइट जिसको कहते हो आप, टेक ऑफ और लैंडिंग, उड़ान और क्या बोलते हैं, प्रस्थान जिसको कहते हैं हम लोग, जो टेक ऑफ और लैंडिंग होता है फ्लाइट का आपके, उसको ऑब्जर्व किए हो कभी, या उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है किसी को? Why I'm asking, because it is a basic, or we can say that is, it is a real example of this module. Yes, Ali Akbar, can you on your mic and can you explain please? यस सर. हाँ, अबाउट please. व्हाट? अभी तो मैंने पूछा, अभी आपने कहा हाँ, तो हाँ मैंने. हाँ पर एक बार हाँ फिर से बता दीजिए ना. हाँ, I'm asking about, first example I have given about the train signal, second example I given about the traffic, मतलब अपना रोड वाला सिग्नल, थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि ये फ्लाइट का जो टेक ऑफ होता है और लैंडिंग होता है, ये तीनों चीज में सिग्नल पे डिपेंड है. यप. हाँ सर. तो उनको कभी ऑब्जर्वेशन आपने किया है कि डिफरेंसेस क्या हैं, या तीनों का छोड़ दो, एक एक का डिफरेंस, एक एक का मतलब सिग्नल का सिस्टम मेरे को कोई एक्सप्लेन करेगा? इतना डीप में नहीं पता है सर, बट जनरली सिग्नल्स तो होते ही है ना सब जगह. हाँ, सिग्नल्स तो होते सिग्नल्स ही का हैं. यूज तो होना ही पड़ेगा ना सर. हाँ, that's fine. Okay, anyway, I'm just giving the example between the road signal and the train track signal, or the train signal. There is a time difference. आप अगर रोड में देखोगे, रोड सिग्नल में, तो उधर टाइम लगा रहता है, 30 सेकेंड, 160 सेकेंड और समथिंग. लेकिन ट्रेन वाले सिग्नल में आप ऑब्जर्व करोगे कभी, तो वहां पे टाइमिंग ऐसा मेंशन नहीं रहता है कभी भी. आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कभी देखोगे या किए रहोगे या नहीं किए रहोगे, then you can just observe. So this is a basic difference between the two signals. Similarly, जो फ्लाइट का मैंने कहा, वो भी एक डिफरेंस है. So my dear students, that your roadside signal or traffic signal is totally depend on time domain. वो टाइम डोमेन पे काम करता है. टाइम डोमेन इसलिए बोल रहा हूँ टाइम डोमेन पे, कि अगर 30 सेकेंड्स होगा, जैसे एक लेफ्ट है एक स्ट्रेट है, तो अगर 30 सेकेंड्स लेफ्ट वालों को अलाउड है, जैसे वो 30 सेकेंड्स होगा तो चाहे लेफ्ट के लिए और 100 गाड़ी खड़ी रहेंगी, उनको स्टॉप होना पड़ेगा. ये बात अलग है, हम लोग कभी कभी स्टॉप नहीं होते हैं, घाई में निकल जाते हैं, दैट्स फनी पार्ट, बट उनको स्टॉप होना पड़ेगा.
चाहे और गाड़ियां खड़ी हैं और वो स्ट्रेट वालों के लिए फिर एलिजिबल हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट वालों के लिए ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग वॉकिंग करते हैं, जब क्रॉसिंग रहता है जहाँ पे, वहाँ पे जब ग्रीन होता है हमारे लिए तब हम क्रॉसिंग करते हैं। अगर चाहे हमको कितना भी अर्जेंट है, चाहे 100 लोग खड़े हों, लेकिन अगर रेड है तो वी शुड वेट। वाई? बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड ऑन टाइम डोमेन। अब आते हैं हम लोग ट्रेन वाले सिग्नल पे। ट्रेन सिग्नल टाइम डोमेन पे कभी नहीं होता है, कभी मतलब कभी नहीं होता है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी डोमेन। वो प्योरली डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन पे। वाई फ्रीक्वेंसी डोमेन? आप देखते रहोगे ट्रेन कभी कभी डिले हो जाती है, लेट हो जाती है। वाई? क्योंकि आगे ट्रैफिक हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 11:33 को अगर ट्रेन है या 11:26 का अगर ट्रेन है, चलते हैं टाइम से, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे कि सर नहीं बोल रहे हैं, टाइम पे नहीं चलता है, टाइम पे, बिकॉज आई ट्रैवल लॉट फ्रॉम मुंबई लोकल। लेकिन समटाइम्स वी कैन ऑब्जर्व, अगर 11:23 का ट्रेन आया है 11:26 पे, तो आइदर द स्टेशन मास्टर चेंज द प्लेटफॉर्म ऑफ 11:26 और ही कैन गिव मोर टाइम टू 11:26। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी उतना क्लियर होना चाहिए। जब तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस क्लियर नहीं होता है आगे वाली ट्रेन का, तब तक दूसरे ट्रेन को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। इफ यू ऑब्जर्व, कभी कभी आप देखे रहोगे आगे पीछे ही ट्रेन चलती रहती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, स्लो 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 स्लो, ऐसा कंटिन्यूअसली रन होते रहती है। वाई? बिकॉज दे ट्रैवल ऑन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन। वो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे वर्क करते हैं, वो टाइम डोमेन पे वर्क नहीं करते हैं। नहीं तो 11:24 11:26 अगर टाइम डोमेन पे है और अगर थोड़ा भी डिले है तो क्रैश हो जाएगा। दिस इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन एग्जांपल। अब मैं आता हूं फ्लाइट पे। फ्लाइट पे आप अगर देखोगे, या ट्रेन का ही एग्जांपल मैं दे सकता था बट मैं फ्लाइट का दे रहा हूं। फ्लाइट जो है आपका प्योरली, आपको अगर लगता होगा क्या नाम है कि जो पायलट रहता है या वो रहता है वो पूरे प्योरली टाइम पे वर्क करता है, नो वे। ही प्योरली वर्क ऑन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन। आप अगर कभी ऑब्जर्व किए रहो, कभी ट्रैवल किए रहोगे तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टूड। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग स्काई में राउंड करते रहते हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग प्लेस टू फॉर लैंडिंग। लैंडिंग के लिए प्लेस नहीं मिलता है। एंड पायलट जो रहता है वो अनाउंस भी करता है, या जो एयर होस्टेस रहते हैं वो अनाउंस भी करते हैं कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन कंजेंशन की वजह से हमको लैंडिंग करने अभी नहीं मिल रहा है। सो फॉर दैट पर्पज वी कैन से दैट इज, हमको क्या दिया रहता है कि 11:26 को फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला है या 11:30 को हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। मतलब हमको टाइम डोमेन दिया रहता है, but that time domain is converted into a frequency domain to flight. Similarly for a train, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके यूटिलाइज किया जाता है, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। Hope I'm clear about the definition of Laplace transformation and the application of Laplace transformation। कि Laplace transformation ऐसा कोई apparatus नहीं है कि मोबाइल फोन जैसा चीज है कि लगा दिया तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी। नो, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस, एंड सॉल्विंग विद द इक्वेशंस we will get little bit about few things. So according to that, I'm just telling you, Laplace transform is a transformation of time domain function to frequency domain function। टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी, टाइम डोमेन फंक्शन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस तो आपके सामने मैंने बताया है, इतने सारे चीजें हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन आपको बताऊं तो पबजी हमारे लिए बहुत ज्यादा हिट गेम था एक जमाने में, अभी बैन हो गया, चल रहा है पता नहीं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग। बट पबजी जैसे बहुत सारे, यू कैन सी दैट इज बहुत सारे, मतलब काउंटर स्ट्राइक, ऐसे बहुत सारे गेम्स आपने खेले होंगे। तो जब गेम आप खेलते रहोगे तो गेम वाइल सीइंग अ गेम, दे एक ऐसा स्क्रीन रहता है, मतलब स्क्रीन में ऐसा सर्कल टाइप रहता है। वहां पे हम लोग ऐसा मिडल में अगर हैं तो यहाँ पे एनिमी है, यहाँ पे एनिमी है, कहाँ पे एनिमी है, या हमारे पार्टनर अगर है तो वो ग्रीन में, नहीं तो रेड में ऐसा शो करता है।
और आप अगर रडार सिस्टम देखोगे जो मिलिट्री या डिफेंस के पास होता है रडार सिस्टम, तो रडार सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा रोटेट होते रहता है, यू कैन सी दैट और यू कैन ऑब्जर्व एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा ऐसा रोटेट होते रहता है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा रोटेट होते रहता है। मतलब एक पीरियोडिक टाइम डिफाइन होता है वहां पे। पीरियोडिक टाइम, व्हाई आई एम सेइंग दैट इज अ पीरियोडिक टाइम, रोटेट होता है तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के टाइम बाद ही उस पोजीशन पे फिर से पहुंचता है। मतलब अगर किसी पोजीशन को आप स्टार्ट कहोगे, अगर इस पोजीशन को मैं ए को स्टार्ट कहूँ इस पोजीशन को, तो अगर यहाँ से रोटेट क्लॉकवाइज हो रहा है तो ए पे फिर से आने के लिए उसको एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। Similarly, your we can say that is conversion of a time domain function to frequency domain function। टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन को में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन is known as a Laplace transformation, and the function must be a periodic function। फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, अपीरियोडिक नहीं होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आता है, बट वाइल इंटरव्यू या जब आप टेक्निकल फील्ड में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बहुत बार एचआर वगैरह जो रहते हैं दे कैन आस्क अबाउट योर जस्ट लाइक आपके जो सेमेस्टर वाइज जो रिजल्ट वो देखते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 अगर है और वो एचआर अगर कभी मैथ्स के बारे में थोड़ा आइडिया वगैरह रहता है तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारे कॉलेज में इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे मैंने देखा है, मतलब स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के बाद आके बोलते हैं अरे सर वो तो लाप्लास का ही एक क्वेश्चन पूछे थे। सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस थिंग्स कि ये सब बेसिक चीजें हैं, यू शुड अवेयर अबाउट दिस थिंग्स, अदरवाइज प्रॉब्लम्स तो पूरा सेमेस्टर हमको सॉल्व ही करना है। सो होप आई एम क्लियर अबाउट दिस थिंग्स। व्हाट इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली है क्या? Is there anyone having any doubts regarding this transformation? So please ask. So I'm just writing about the definition of Laplace transform. Laplace transform is generally represented as Laplace of, जैसे डेरिवेटिव आप लिखते हो याद होगा डी बाई डी टी और डी बाई डी एक्स, या इंटीग्रेशन के लिए एक सिंबल आप यूटिलाइज करते हो, ऐसा स्नेक जैसा सिंबल रहता है, यू अवेयर अबाउट दिस थिंग। तो लाप्लास के लिए सिंबल है एल, कैपिटल एल। तो एल is represented for Laplace of f of t, f of t। Laplace of f of t मतलब time domain function, t is represented for time domain function and is converted to f of s। f of s means, or s means frequency domain function। So time domain to frequency domain, टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइज होता है वो होता है, दैट पार्ट इज नोन एज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बट द कंडीशन इज पीरियोडिक फंक्शन, periodic function, periodic function। So these are the things, few things which are to, you should aware about these things. What is the exact definition and the mathematical way how to write the Laplace transformation? So L f of t is equal to f of s. So hope I'm clear about these things. F of s is represented as a function with frequency domain, f of t is a function with time domain। लेकिन obviously there is a something, I'm asking about one thing, again a question from a student side, derivative, or Milan Rajani, you can just explain about these things। डेरिवेटिव, जैसे डेरिवेटिव हम लोग अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? मिलन रजानी, प्लीज ऑन योर माइक एंड यू कैन जस्ट, Milan Rajani, are you there?
यस सर। हाँ, हेलो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? सर, cos x। ओके, कैसे वो cos x आता है? सर वो फॉर्मूला है ना, एक 12th में किया था ना। ऐसा तो मैं डिराइव मेरे को करके। किसी स्टूडेंट्स को आपको बताना है तो आप ऐसा बोलोगे कि उसको बताओगे कि कुछ तो प्रोसेस आपने सीखा होगा ना, कि आखिर आपको अगर प्रूफ करने, मैंने कहा टू प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज अ कॉस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। चलो साइन एक्स तो दूर की बात है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 होता है ना यस। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, आई एम जस्ट क्लियरिंग, नहीं तो बोलोगे कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई रहेगा तो 0 हो जाएगा, दैट्स फाइन। बट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। कैसे? हाउ? हेलो Yes, how it is possible? Derivative of x is equal to 1. सर, वो 12th में आया था, हम लोग को फॉर्मूला सिखाया था, अभी पता है नहीं, प्रूफ करके नहीं बताया था हम लोग को, इसलिए झूठ इतना मत कुछ बोलो। पता नहीं मुझे। नो नो, प्लीज डोंट लाई, प्लीज। आपने सीखा है, अगर मैं बोलूंगा तो अभी तुरंत आप बोलोगे यस यस आई रिमेम्बर। तो प्लीज डोंट से लाइक दिस, बिकॉज कुछ तो था, क्योंकि आप लोग के टाइम पे पैंडेमिक नहीं था, तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर अबाउट, क्योंकि जब आप 11th 12th पढ़ रहे थे तब पैंडेमिक नहीं था। आई एम जस्ट टेलिंग दिस। हाँ। So that time यस यस। already hope you aware about all the things, कुछ syllabus cut out, कुछ cut short नहीं था। Anyway, anyone from this class, can you prove that derivative of x with respect to x is equal to 1? उसको proof कैसे किया जाएगा? Anyone from this class? Hope I will get the answer. इतना हार्ड सवाल पूछ लिया मैंने यार, इतना सिंपल सवाल है। सर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। Very good, very good, very good, very good. There was a we can say that is a process। जब भी आप डेरिवेटिव पढ़ते हो या लिमिट्स कंटिन्यूटी आपने पढ़ा होगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल जरूर पढ़ा होगा, और फर्स्ट प्रिंसिपल ही आपको सिखाता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। याद होगा आपको, मिलन रजानी पढ़ा था ना फर्स्ट प्रिंसिपल। मिलन सर याद नहीं है। नहीं सर याद याद है? नहीं है। अरे बाप रे बाप, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जरूर देख लेना फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके सर, ओके। हाँ, बिकॉज वेरी सिंपल, वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट, ये तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवा दिया जाता है, फॉर्मूला बता दिया जाता है। मतलब कहने का ये है मेरा, why I'm explaining this previous things in this class, because कुछ तो बीच में प्रोसेस होता है कि जो हमको एफ ऑफ टी से एफ ऑफ एस देता है। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, तो बीच में एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है, तो बीच में कोई प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस होता है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, लाप्लास ऑफ f of t is equal to 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt is equal to f of s होता है। टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन तो कन्वर्ट करते हैं, उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, कहते हैं। ये तो हमारा किताबी डेफिनेशन या थेरोटिकल डेफिनेशन हो गया। बट मैथमेटिकल, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल डेफिनेशंस आर मैंडेटरी। सो दिस इज नोन एज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैथमेटिकल definition, mathematical definitions. So hope I'm clear about this thing। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल बीच में होता था, वैसे ही यहाँ पे एक प्रिंसिपल है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यही एक apparatus you can understand in mathematics, because maths is a totally abstract subject। तो उस abstract में ये आपके पास एक हथियार है जिसमें कोई भी फंक्शन रखोगे और इंटीग्रेट करोगे
तो टाइम डोमेन जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको बाय डिफॉल्ट या टाइम डोमेन फंक्शन जो भी है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको मिल जाएगा. एंड वन मोर थिंग, you will understood these things or you can understand for future point of view, e raised to minus infinity जो होता है that is equal to 0. Please take a serious note of this part. E raised to minus infinity is equal to 0. So according to that point, you should clear about these things. Laplace of f of t is equal to f of s, but the procedure is 0 to infinity or integral 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt. अब इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको सेम टू में, शायद आप लोग ही थे मेरे क्लास में, दैट टाइम सेम वन सेम टू में आप लोग ही थे. I already explained about the integration by parts. If you remember, what is the integration by parts? कैसे करते हैं u v d t, अगर t से यहाँ पे रखा गया है. आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह किया जाता है. तो u एज इट इज रखने के लिए मैंने कहा था v का फर्स्ट इंटीग्रेशन लोगे v1, फिर माइनस ले लो, u का डेरिवेटिव आप लोगे तो u डैश यहाँ पे लिखता हूँ. इसका नेक्स्ट इंटीग्रेशन लोगे v का, तो वी कैन से दैट v2 यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर प्लस u वाले पार्ट का नेक्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो u डबल डैश, वी कैन से दैट v2 का नेक्स्ट इंटीग्रेशन लोगे v3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर माइनस u ट्रिपल डैश और v4 अप टू सो ऑन. ऐसा जाना है कब तक, जब तक u 0 नहीं हो जाता. ये डेरिवेटिव हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने सीखा है. उसमें भी आपको कंडीशन एंड अप्लाई अगर आप याद होगा तो LIATE, लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल. इसमें कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बिनेशन देखो u इंटू वी, u क्या है, v क्या है. तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट यू कैन जस्टिफाई दिस पार्ट, कौन सा u रहेगा कौन सा v रहेगा. ऑलरेडी ये पता होगा आपको, बट मैंने सिर्फ रिवाइज यहाँ पे किया है. सिमिलरली अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा 2 to 3 है, दैट टाइम आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स एंड विल एक्सप्लेन मोर टॉपिक्स और मोर क्वेश्चंस. बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको. अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं लाइक कॉस कॉस, साइन साइन विद डिफरेंट एंगल्स, नॉट सेम, with different angles like sin 2a, sin 2t, cos 3t, sin 2t, sin 3t, cos 2t, cos 4t, then you hope you aware about this thing, defactorization formula. 2 से multiply, 2 से divide करते थे, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, ऐसे पूरे फॉर्मूले हमारे होते थे. दैट फॉर्मूला वी हैव टू अगेन रिवाइंड हियर एंड वी हैव टू यूटिलाइज हियर सो दैट वी कैन सॉल्व आउट द प्रॉब्लम. ये देखने के बाद हम लोग कुछ फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखेंगे. जैसे अभी मैंने कहा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो जैसे आप लोगों ने कहा कॉस एक्स, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो ज़रूरी नहीं है जैसे हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल यूटिलाइज करके सॉल्व करके दिखाओ कि साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स ही होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स ही होता है, और कॉट का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ई रेस टू एक्स का क्या होता है. हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करके प्रूफ करना मैंडेटरी या ज़रूरी नहीं होता है, बट पता होना चाहिए वो किससे आता है. सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फॉर्मूला हियर. बट आपको स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद रखना है. जैसे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव आपने याद रखे हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, ये सब आपको याद है ना. वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू एक्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एक्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टैन है. ऐसे सभी के लाप्लास, स्टैंडर्ड लाप्लास आपको याद रखना पड़ता है. तो प्लीज टेक अ सीरियस नोट ऑफ दिस पार्ट. तो कैसा है, अगर आपको याद रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन यूज फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, बिकॉज हर बार ये फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको बोला, क्वेश्चन आया एग्जाम में, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म
इवैल्यूएट लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन। तो डेफिनेशन मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यही है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन जो लिखा हूँ यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है, यही चीज यूटिलाइज करके आपको लिखना रहेगा। होप आई एम क्लियर अबाउट दिस पार्ट। If anyone having any doubts regarding this, so please ask. I'm waiting for your doubt session. If no doubts, we'll stop here and we'll meet at 2 p.m. sharp 2 p.m. and we'll solve more numericals regarding that. So please comment in a chat box and wait for attendance. जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आप प्लीज लीव मत करो, अदरवाइज यही होता है कि अटेंडेंस कुछ लोगों का प्रेजेंट होने के बाद भी लास्ट मोमेंट में निकल जाते हैं और बाद में अटेंडेंस के लिए मेरे को मैसेज करते हैं। बट ठीक है, मैसेज कभी कभार ठीक है, बट कोशिश करो कि जब तक क्लास में टीचर आपको नहीं बोले निकलने तब तक प्लीज मत निकलो, क्योंकि आप लेक्चर बैठ के भी अगर आपका अटेंडेंस में नाम नहीं आता देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। I'm just stopping the presentation, but don't leave. I'm just taking the attendance.